there is some issue with the mouse. Let me solve it. I don't know what is the problem with this mouse. Oh, it is not working. Okay. So yes, Kaustubh is there, Arushi is there, Devansh is there. Okay. Ayushi and Ashish are also there. Fine. So let us start argument of a complex number. There is some problem with my mouse, so uh, it may be slow sometime, but I hope you will adjust to it. If anyone is having any doubt from previous class, or if you have practiced questions and assignments, then you can ask that also. What happened to this pad also? I don't know. No external device it is detecting. I don't know what is the technical problem here. हाँ, ये लैपटॉप जो है कोई भी यूएसबी डिवाइस में लगा रहा हूँ, वो उसको वर्क नहीं कर रहा है। मतलब डिटेक्ट तो कर रहा है लेकिन वर्क नहीं कर रहा, माउस भी नहीं और ये पैड भी नहीं। तो क्या इशू हो सकता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने स्लॉट भी अलग अलग लगाए। हाँ, मैंने सारे स्लॉट्स में लगाया। और ये जो है मतलब डिटेक्ट हो रहा है, लाइट जल रही है, लेकिन ये कुछ काम नहीं कर रहा। हाँ, ये स्टार्ट करता हूँ एक बार।
ठीक है, मैं करता हूँ. Hello everyone, I am restarting this uh, uh, system again so that the problem would be resolved. So you Okay, sir. stay online. I am just restarting it in 5 minutes. I am doing the restart process. It will take 5 minutes to rejoin me. Okay, sir. Yes, now it is working. I hope I am audible to everyone now, and the mouse has also started working now. Yes, sir.
So complex numbers argument. So what is an argument? Basically, geometrically, if you remember, if there is a complex number z, which is written as x plus iota y, then in that case, we can change it into polar form. And when we change it into polar form, we can write it as r cos theta plus iota sine theta, where r is actually the modulus of the complex number z, which will be calculated as root over x square plus y square. This we did in the previous class. And theta is actually the argument of the complex number z. What is argument of a complex number? Roughly, we have understood that if there is a complex number z, which is having x plus iota y, x is its real part, y is its imaginary part. And if we join a line from origin to this complex number, then this distance is called modulus, which is r, and the angle which makes with the positive x-axis is theta, which is the argument of the complex number. So if we have been given the radius, or we say that the modulus of the complex number and the argument, we can also locate that point, because both method is fine. If you have, suppose it is given that there is a complex number z, which is 2 into cos of pi by 6 plus iota sine of pi by 6. Now it is asked that locate it without knowing the x and y. So you can do that. What you have to do is, you have to see this mod is 2 actually. So at a distance 2 unit, a circle will be drawn, and that circle will have this point. Now, which exact point will it? That will be decided by the argument pi by 6. So if we suppose we take an angle pi by 6 from the x-axis and measure it and draw a ray coming out like this, this is pi by 6. So the point where the line and the circle are getting intersected, this particular point, this is that point z, because this is the point which satisfies both the condition, that is the modulus also and that is the argument also. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. So now the question arises, Yes, how sir. to calculate argument. So first note this down, then I will tell you how to calculate argument. What is the process of calculating argument, and what are the different cases which arise? सर लास्ट स्टेप दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए. लास्ट स्टेप मैंने ये बोला था ना कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, which is 2 into cos pi by 6 plus iota sin pi by 6. So in this particular example, the modulus is 2 and the argument is pi by 6 for this example. So if you want to locate the point, what you will do, you will take a circle, which is in green color over here, which is having the radius 2 unit. And if you want to find the argument, you take a ray coming out of the origin, and it is making with the x-axis pi by 6 angle. Now where the circle and the ray will intersect, that particular point will satisfy both the conditions simultaneously. That is, its distance from origin is 2 and the angle which it is making with x-axis is pi by 6. So this is the point on the complex plane. Is it okay? Yes, sir. Good. Should I erase all of this? Yes, sir, done. ओके. सो आर्ग्यूमेंट हम कैसे पता करते हैं? सबसे पहले ये मान लो कि आर्ग्यूमेंट जो होता है उस वो एक जनरल आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट विच इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड आल्सो. सो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड, how does we do the calculation? So basically, if a complex number z
is in the first quadrant, then this is the theta and this is x comma y, or we can say x plus iota y, and we have to find theta, which is the argument of the complex number. So what we will do, we will say that tan of theta is equal to perpendicular by base, that is y upon x. Now this theta would be obtained from here. For example, if you have 1 plus root 3 iota and it is asked to find its argument, what we will say that tan theta is equal to y by x, which is root 3 by 1, which is actually root 3. So from here theta would be equal to pi by 3, that is 60 डिग्री. तो ये आर्ग्यूमेंट आ गया, लेकिन ये हर जगह इतना आसान नहीं होता, हर क्वाड्रेंट में इतना आसान नहीं होता है. इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम आसानी से निकाल सकते हैं. अब आती है बात सेकंड क्वाड्रेंट में. मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं पर है, यहां पर, and the angle which it is making with the positive x-axis is this angle, this new angle, इसको theta dash कहते हैं. Now in this second quadrant, let us take an example of -1 plus iota. So as you can see here, -1 plus iota lies in the second quadrant. Why it lies in the second quadrant? Because the real part is negative and imaginary part is positive. So if you want to find here argument, what you have to do, first you have to calculate tan theta as mod of y by x. This is the first step. So in general also what we do, that we take mod of y by x. But in first quadrant already y and x were positive, so we did not do anything. But here, since y by x mod we are taking, so we will take 1 by -1 का mod, which will be -1 का mod, which will be 1 finally, क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है. तो इससे थीटा क्या आ जाएगा, थीटा विल बी पाई बाई 4, 45 डिग्री. टैन थीटा 1 कब होता है, 45 डिग्री पे, लेकिन ये 45 डिग्री तो हो नहीं सकता, बिकॉज दिस इज इन एक्चुअली सेकेंड क्वाड्रेंट. तो जो आर्ग्यूमेंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स का होगा, इसका विच इज थीटा डैश, उसको कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, उसको हम कैलकुलेट करेंगे पाई माइनस पाई बाई 4, दैट विल बी इक्वल टू 3 पाई बाई 4. तो ये इसका आर्ग्यूमेंट आएगा. इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, 135 डिग्री. So if we are in the first quadrant, the theta is the argument of the complex number. But if we are in the second quadrant, then argument of the complex number would be actually pi minus theta, right? And if we are in third quadrant, suppose we are in this particular quadrant, then the angle we measure clockwise like this. And clockwise measurement of angle is actually negative, anti-clockwise is positive. So this is the argument, and if you want to find the argument here, what you will say, that argument of the complex number z is equal to minus pi plus theta here. So minus pi, why we are taking minus pi, just keep your attention here, that minus pi का मतलब ये हो गया कि ये clockwise 180 डिग्री घूमा, फिर इसके बाद उसमें मैंने थीटा ऐड कर दिया, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिस्टेंस मूव किया. तो ओवरऑल जो इसने मूव किया वो माइनस पाई प्लस थीटा मूव किया, और उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो थर्ड क्वाड्रेंट का है उसका आर्ग्यूमेंट हमें मिल जाएगा. मैं हर किसी का एक एक एग्जांपल अभी तुम्हें बताऊंगा. और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को लेते हैं, इफ वी टेक अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, व्हाट विल हैपन, सपोज दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर z which lies in the fourth quadrant. So the angle is this one, this is the argument. Now this argument of the complex number is calculated as minus of theta, because the angle is theta, whereas the direction is clockwise, so we take negative minus of theta. So what are the two steps? Basically I'm writing it here. When any complex number is given, there is a complex number z, it is given to us x plus iota y. First step is that take tan theta is equal to mod of y by x. ठीक है, हम mod of y by x लेंगे, y नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, x नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इसका रेशियो जो आएगा वो जो भी आएगा नेगेटिव है उसका मॉड लेंगे, मतलब पॉजिटिव लेंगे. सेकेंड स्टेप इज दैट वी विल एनालाइज विच क्वाड्रेंट द z लाइज. तो z लाइज इन विच क्वाड्रेंट, दिस वी हैव टू सी. और ये हमें आसानी से कैसे पता चल जाएगा,
रियल पार्ट के साइन से और इमेजिनरी पार्ट के साइन से। तो किस क्वाड्रेंट में z लाई कर रहा है ये हमें पता करना है। एंड देन द थर्ड स्टेप इज बेसिकली, जो कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है, कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो जो फर्स्ट स्टेप से थीटा मिलेगा वही उसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आर्ग्यूमेंट उसका होगा पाई माइनस थीटा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसका आर्ग्यूमेंट होगा माइनस पाई प्लस थीटा। और अगर फोर्थ आर्ग्यूमेंट पे लाई कर रहा है क्वाड्रेंट में तो माइनस थीटा हो जाएगा आर्ग्यूमेंट। सो वी विल नाउ सी द एग्जांपल्स। दो एग्जांपल तो मैंने अभी यहाँ पे तुम्हें दिखाए भी हैं, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का, एक सेकंड क्वाड्रेंट का। अब हम लोग और एग्जांपल्स भी थर्ड और फोर्थ का देखेंगे, लेकिन पहले ये नोट कर लो। जैसे ये जो दूसरा एग्जांपल मैंने दिया था ना, इसमें हमारे पास क्या था, इसमें हमारे पास जो था वो था -1 प्लस आयोटा। तो इसको देखते ही हमें इतना पता चल गया कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बिकॉज इट्स रियल पार्ट इज निगेटिव, तो निगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, बट द इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव, +1 है, आयोटा के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो +1 इज पॉजिटिव, तो यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया। तो दिस इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो जैसे ही हमें ये पता चल गया कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो जब हम एक बार थीटा निकाल लेंगे विच इज इक्वल टू π/4, तो आर्ग्यूमेंट के लिए हम क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता है, तो फाइनली आंसर विल बी 3π/4। मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 3π/4। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Okay, good. Just write this down. I will discuss few more examples. If you are done with this, please tell. Sir, done. Okay. Okay, now if it has been asked कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2√3 माइनस आयोटा, -2 आयोटा। अब इसका हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है, ठीक है। मॉड्यूलस कैसे निकालते थे, मॉड्यूलस में तो कोई इशू नहीं है, √x² + y² करेंगे, तो 2√3 का स्क्वायर करेंगे और -2 का स्क्वायर करेंगे। y 2 नहीं है, y -2 है,
तो दिस विल बी रूट ओवर 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, और ये -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट ओवर 16 विच इज एक्चुअली 4। ये तो मॉडुलस आ गया। मॉडुलस कैसे निकालते हैं ये हमने पढ़ लिया था। आर्ग्यूमेंट जब इसका निकालेंगे तो फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्ड इन फाइंडिंग द आर्ग्यूमेंट इज दैट वी फाइंड थीटा। सो tan थीटा इज मॉड ऑफ y by x, y is -2, x is 2 root 3, so it will become -√3 का mod, which is actually √3 का mod, that is √3। तो थीटा हो जाएगा, tan थीटा √3 कब होता है? 60 डिग्री, राइट? So pi by 3। Yes, sir. Good. Now second step is this theta the argument also? तो ये थीटा आर्ग्यूमेंट तभी होगा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन अभी हमें पता नहीं कौन सा क्वाड्रेंट है। तो कोई मुझे बता सकता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा क्वाड्रेंट होगा? So second quadrant, कैसे? because the imaginary number is in minus. हाँ, तो x कोऑर्डिनेट तो प्लस है लेकिन y कोऑर्डिनेट माइनस है। तो y कोऑर्डिनेट अगर माइनस होता है और x प्लस होता है तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है? अरे एकदम सिंपल चीज है, x इज पॉजिटिव बट y इज निगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? x is 2 root 3 which is positive, y is -2 which is negative। तो चारों क्वाड्रेंट में से किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव x होता है और निगेटिव y होता है, ये बता सकते हो? पॉजिटिव x मतलब क्या हो गया? राइट वाला हो गया ओरिजिन के, isn't it so? दिस इज पॉजिटिव x, दिस इज नेगेटिव x। और पॉजिटिव y का क्या हो गया? अपर फ्रॉम द ओरिजिन इज पॉजिटिव y, बिलो फ्रॉम द ओरिजिन इज द नेगेटिव y। Sir, तो fourth quadrant. दैट वुड बी फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? इसमें इतना ज्यादा दिक्कत की बात नहीं होगी, सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट जब क्लियर हो गया तो हम आर्ग्यूमेंट क्या लेते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज एक्चुअली -θ, सो दिस विल बी -π/4। तो इसका आर्ग्यूमेंट है -π/4। ये हमें ध्यान देना चाहिए, ये याद रखो, कोई बार बार डिराइव नहीं करोगे। तो ये तुम्हें याद रखना है कि इफ यू आर टेकिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z is same as theta, but if you are talking about the second quadrant then it is pi minus theta। if you are talking about the third quadrant then it is minus pi plus theta, and if it is you are talking about fourth quadrant then this is माइनस थीटा। तो ये पॉइंट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में था, इसीलिए इसका आर्ग्यूमेंट हो गया माइनस थीटा। थीटा से तो हमें बस ये पता चलता है कि मॉड ऑफ y बाई एक्स, लेकिन क्वाड्रेंट से हमें ये पता चलता है कि एग्जैक्टली हम उस थीटा पे क्या अप्लाई करें कि आर्ग्यूमेंट मिल जाए। ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. क्या आरुषि, रेस्ट ऑफ द पीपल, आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, आशीष एंड देवांश, ओके। सो जस्ट राइट दिस डाउन, और उसके बाद मुझे ये बताओ कि उसके बाद मैं एक एग्जांपल और देता हूं तुम्हें, इसका मुझे आर्ग्यूमेंट निकाल के बताओ। z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, फाइंड इट्स मॉडुलस, फाइंड इट्स आर्ग्यूमेंट।
इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट, या हेलो। हेलो। हाँ हेलो। सर ये पैरामीटर क्लासेस से बात कर रहे हैं? सर बात कर सकती हूँ अभी? मैं एक्चुअली भी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, मैं आपको 7 बजे के बाद कॉल करता हूँ या आप कर लीजिएगा। ठीक है सर, ओके, ओके। थैंक यू। सो व्हाट हैपेंस हियर कि अगर तुम्हें मॉड ऑफ z लेना है तो रूट ओवर x का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा फाइनली रूट ओवर। ये तो इसका मॉड आ गया। आर्ग्यूमेंट नहीं आ रहा, बाकी तो सब आ रहा। आर्ग्यूमेंट नहीं आ रहा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा इज मॉड ऑफ y बाई एक्स मतलब -1 बाई -1, तो फाइनली ये 1 आ जाएगा। अच्छा, ये क्वाड्रेंट कौन सा है, कोई बता सकता है मुझे ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सर थर्ड क्वाड्रेंट। करेक्ट है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है क्योंकि x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या होता है? -5 पाई प्लस थीटा। तो -पाई प्लस थीटा, और थीटा क्या है, tan थीटा 1 आया मतलब थीटा इज 45। 45 विच इज पाई बाई 4। तो -पाई प्लस पाई बाई 4 दैट विल बिकम -3 पाई बाई 4। दिस विल बी इट्स आर्ग्यूमेंट। स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें। और हर क्वाड्रेंट के लिए आर्ग्यूमेंट को याद रखना है कि क्या आर्ग्यूमेंट होता है थीटा के रिस्पेक्ट में। सर आपने जैसे पहले वाले एग्जांपल में जो आर्ग्यूमेंट लिखा था उसमें माइनस थीटा है, एंड सर थीटा की वैल्यू पाई/3 आ रही थी, आपने -पाई/4 लिखी हुई है। अच्छा सॉरी सॉरी, गलती कर दिया, और ध्यान नहीं रहा। दिस इज -पाई/3, सॉरी। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दिस आउट। किसने बताया अभी ये? देवांश। देवांश, ओके। इरेज कर दूं ये? Yes, sir. तो कुछ आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज भी हम लोग देखेंगे अभी, लेकिन उससे पहले एक चीज तो ये समझ लो, फिर क्वेश्चंस भी अभी और देखने हैं हमें। ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो मैंने तुम्हें बताए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो हैं थोड़ा इसके ऊपर लेवल के भी हैं, वो अभी थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। लेकिन एक चीज ये बतानी है कि जो आर्ग्यूमेंट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, दैट इज फ्रॉम पाई टू -पाई। तो अगर हम मेजर करना चाहते हैं आर्ग्यूमेंट, तो हम कैसे मेजर करते हैं, -पाई से लेके मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस तक क्लॉकवाइज, और फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस तक एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक 1 पाई तक कवर हो गया, 0 से पाई, और यहाँ से यहाँ तक 0 टू -पाई कवर हो गया। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि आर्गुमेंट -पाई और पाई के बीच में लाई करता है, इसीलिए हम अलग अलग क्वाड्रेंट्स के लिए अलग अलग आर्गुमेंट करते हैं। एक मिनट में कॉल रिसीव कर लेता हूँ। हाँ हेलो, हेलो सतीश। हाँ, उसका पासवर्ड है लिखना है, लिख लो कहीं पे, मैं बता देता हूँ। हाँ हाँ, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ, ओके। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, इशू नहीं उसमें, लेकिन चीजें होंगी वो कैसे करोगे? ओके ठीक है, ओके। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि -पाई से लेके पाई तक जो है वो
हमारा आर्ग्यूमेंट लाई करता है। तो बेसिकली अगर हम कुछ क्वेश्चंस देखें आर्ग्यूमेंट पे, अभी प्रॉपर्टीज पे भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, पहले प्रॉपर्टीज कर लेंगे उसके बाद, लेकिन उससे पहले मैं आर्ग्यूमेंट पे तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और लंबा है। द क्वेश्चन सेज अमंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स z which satisfies mod of z minus 25 iota is less than equal to 15. Find the complex number z having a part है least positive argument, b part है maximum positive argument, c part है least modulus। ये कॉल आ रही है एक मिनट। हाँ सतीश, मैं बस भेज रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ भाई, पासवर्ड मैंने लिखा हुआ है, मैं भेज रहा हूँ। हेलो, least modulus and then we have maximum modulus. Do these questions. I will explain it, but first you need to do on your own, at least try on your own. Even if you don't do it, you should try maximum what you can do. ठीक है, जब भी कहा जाता है कि क्वेश्चन को करना है, इसका मतलब है कि उसको ट्राई करना है। ये मत समझो कि क्वेश्चन होगा तभी कर पाएंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ट्राई करने से ही बेनिफिट होता है। क्वेश्चन जब हो जाता है तो उसके बाद बेनिफिट उतना नहीं होता है। तुम्हें मैं एक एग्जांपल अभी बताता हूँ, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसके पीछे क्या रीजन है। एक्चुअली इफ यू वांट टू नो, जो जिम ट्रेनर्स होते हैं उनका क्या रूल होता है, अगर इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, या फिर जो एथलेटिक्स होते हैं, जैसे अभी नीरज चोपड़ा का एथलेटिक्स में बहुत सही परफॉर्मेंस रहा, तो इन लोग की ट्रेनिंग होती है, तो उसमें क्या होता है, दैट इज ट्रू फॉर एनी कोचिंग, इवन इफ इट इज अ फिजिकल क्लास कोचिंग और नॉर्मल क्लासेस विच वी एकेडमिक क्लासेस, सब में एक रूल होता है। ठीक है, वो रूल समझना काफी इंपॉर्टेंट है। एंड दैट रूल इज कि जब कोई बंदा जाता है ना कुछ भी करने के लिए, जैसे एक जिम में जा रहा है, मान लो जिम का एग्जांपल लेते हैं, तो वहां पर जो ट्रेनर होता है वो ये बोलता है कि तुम अपना वेट उठाना शुरू करो। तो वो वेट उठाता है और मान लो 18 किलो तक उठा दिया, उसके बाद 19 किलो नहीं उठा पा रहा है, तो ट्रेनर क्या बोलता है कि तुम्हें 19 किलो से अपनी एक्सरसाइज करनी है। 18 किलो तक तो उठ जा रहा है, लेकिन वो बोलता है कि 19 किलो से करनी है, 19 किलो उससे उठ नहीं पा रहा है, तो वो बोलेगा कि 19 किलो तो मैं तो उठा नहीं पा रहा हूँ, तो कैसे करूंगा एक्सरसाइज। तो वो बोला नहीं, तुम्हें उसी से करनी है। अब कंफ्यूजन है यहाँ पे, जब वो उठा नहीं पा रहा है तो एक्सरसाइज कैसे करेगा। 18 किलो उठा पा रहा है, 18 किलो से एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन जो ट्रेनर है वो बोलेगा कि जितना तुम उठा पा रहे हो उतना से नहीं करना है, उससे ज्यादा से करना है। अब क्वेश्चन ये है कि जब उठा ही नहीं सकेगा तो एक्सरसाइज कहाँ से करेगा। तो पॉइंट ये है कि जो बेनिफिट
उसको उठाने से मिलता है, उससे ज्यादा बेनिफिट उसे ट्राई करने पे मिलेगा। जिस दिन उससे 19 किलो उठ गया तो वो 19 किलो उसके किसी काम का नहीं है। अब वो क्या करेगा, 20 किलो उठाने की कोशिश करेगा। तो जो भी मसल्स बनती हैं जिम में, तो वो तभी बनेंगी जब वो ट्राई करेगा उठाने की। जिस दिन उसने वो डंबल या बारबल उठाना शुरू कर दिया 19 किलो वाला, फिर उससे एक्सरसाइज करने का वो बेनिफिट नहीं होने वाला। फिर उसको अपना वेट वहां पे ले जाना है जो उससे नहीं उठ पा रहा है, क्योंकि जब उठ जाएगा तो फायदा नहीं है, जब तक उठने की ट्राई करता रहेगा तब तक फायदा है। तो उसी तरीके से मेंटल एक्सरसाइज भी होती है, एकेडमिक्स कोर्सेज भी होते हैं, कि इसमें जो क्वेश्चन तुमसे हो जा रहे हैं अगर वही क्वेश्चन करते रहोगे तो बेनिफिट उतना नहीं होगा, बस ये है कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहे हैं वो क्वेश्चन करो। तो इसका क्या मतलब होता है कि वो क्वेश्चन ट्राई करो, क्योंकि जब तुम कोई ऐसा क्वेश्चन ट्राई करोगे जो तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम्हारा मेंटल एक्सरसाइज बहुत होगा, तुम नॉलेज गेन करोगे, तुम थ्योरीज को देखोगे, अलग अलग क्वेश्चंस को देखोगे, फिर उसको करने की कोशिश करोगे। जिस दिन वो क्वेश्चन तुमसे हो गया फिर वो क्वेश्चन तुम्हारे काम का नहीं है। जब तक तुमसे नहीं हो रहा था और तुम उसको ट्राई कर रहे थे तब तक ही तुम्हारे काम का था। तो जनरली स्टूडेंट्स गेट फ्रस्ट्रेटेड कि मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है ना, उसको ट्राई करते रहो, तभी तो तुम्हें बेनिफिट होगा। जिस दिन वो क्वेश्चन हो गया फिर तो उससे कोई बेनिफिट ही नहीं होने वाला, क्योंकि वो क्वेश्चन तो हो ही गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो ट्राई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको सबको ट्राई करो, जितना मैक्सिमम एफर्ट लगा के ट्राई कर सकते हो। फिर मैं एक्सप्लेन तो कर ही दूंगा, लेकिन मेरे एक्सप्लेन करने से बेनिफिट नहीं होने वाला। तुम जो ट्राई करोगे उसी से तुमको बेनिफिट होगा। मेरे एक्सप्लेन करने से बस तभी बेनिफिट होगा जब तुमने एनफ ट्राई कर लिया हो और अब तुमसे बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है, तब मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कैसे सोच रहा था या मैं कैसे सोच रही थी और यहाँ पे कैसे सोचना चाहिए था। तब हम कंपेयर करेंगे अपनी सोच को और जो टीचर की सोच है उसको। अदरवाइज अगर हम कुछ ट्राई नहीं करेंगे और डायरेक्ट टीचर को कह देंगे सर आप बता दो, तो फिर उस केस में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ऐसे तो पूरी बुक है, पूरा यूट्यूब है, हर जगह बहुत कुछ बताने के लिए है, लेकिन बेनिफिट कब होगा, जब तुम ट्राई करोगे। तो इसको ट्राई करो एक बार, फिर हम एक्सप्लेन तो हो ही जाएगा ये। हिंट मैं देता हूं थोड़ा सा, कि अगर तुम्हें एफर्ट लगाना पड़ रहा है तो हिंट मैं थोड़ा दे देता हूं। देखो मॉड ऑफ जेड का क्या मतलब होता था, इफ यू रिमेंबर, मॉड ऑफ जेड का मतलब होता था ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर जेड की दूरी। ठीक है, तो मॉड ऑफ जेड अगर कुछ दिया होता है तो मतलब उसका रेडियस दिया होता है, सर्कल का रेडियस। अगर मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट दिया हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि ऑन अ प्लेन जेड नॉट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, वहां से जेड की दूरी, दिस इज मॉड ऑफ जेड एंड दिस इज मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट, जेड की जेड नॉट से दूरी। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो हो गया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का मतलब ये हो गया कि दोनों के बीच का दूरी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। और उसके बाद मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन इक्वल टू 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन इक्वल टू कुछ आर दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जेड नॉट और जेड की जो दूरी है वो आर से छोटी है या उसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि जेड नॉट को सेंटर मानते हुए एक सर्कल बनाएंगे जो जेड से पास कर रहा है और इसका रेडियस आर रखेंगे। तो इस सर्कल के ऊपर और इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे पूरे रीजन में, उन सब में
सबको ये इंक्लूड कर रहा है। दिस z इंक्लूड्स ऑल ऑफ दोज कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच आर इनफाइनाइट इन नंबर, उस सर्कल में जिस सर्कल का सेंटर z0 है और जिसका रेडियस r है। ये ज्योमेट्रिकली समझ में आ रहा है क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? यस सर आ रहा है। ओके, तो सर, ये एक चीज बार फिर ध्यान से में रख बताएं। के अब तुम इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। Someone has replied. Let us see what answer is coming. 12 plus 16i. Okay. For first part you are saying, na? Arushi is there, na? Arushi. One more answer has come from someone. -12 plus 16i. आरुषि, आई थिंक दोनों आंसर तुम्हारा सही लग रहा है मुझे। अभी डिस्कस करते हैं, बाकी लोग अगर ट्राई कर लिए हो तो मैं डिस्कस करता हूँ, नहीं तो अभी और ट्राई कर रहे हो तो मैं वेट कर लेता हूँ। देखो, अगर मैं इसका फिगर बनाना चाहूँ, ठीक है, फिगर से बहुत शॉर्ट में सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर जो z माइनस z0 है, दिस इज z, जो कि एक वेरिएबल है, और z0 जो है वो 25 आयोटा है, जिसका कोई रियल पार्ट नहीं है, जिसको तुम कह सकते हो 0 प्लस 25 आयोटा। तो दिस इज हैविंग रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट 25। तो ये जो है यहाँ पर कहीं पर ये पॉइंट है हमारे पास, दिस इज 0,25, ठीक है। और हमें क्या करना है, 0,25 को सेंटर मानते हुए और 15 को रेडियस मानते हुए एक सर्कल बनाना है। तो अगर हम एक सर्कल बनाते हैं 15 को रेडियस मानते हुए,
और 0,25 को सेंटर मानते हैं। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है। ये ऐसे ऐसे, तो इस सर्कल में थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बनाता हूँ ऐसे। तो इस सर्कल में इस सर्कल का जो सेंटर है वो ये है 0,25, विच इज एक्चुअली Z0। अगर तुम ये देखो तो दिस इज एक्चुअली Z0, Z माइनस Z0 मैंने बताया था, तो ये Z0 है। और Yes, इसका sir. जो रेडियस है सर्कल का वो 15 है, तो दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली 15 ऑफ दिस सर्कल, रेडियस जो सर्कल का। अब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर कई जगह है, मतलब इस पूरे सर्कल के ऊपर भी हैं और इस पूरे सर्कल के अंदर वाले भी हैं, क्योंकि रेडियस के बराबर भी हम ले सकते हैं या रेडियस से छोटा भी ले सकते हैं, बिकॉज इट इज स्मॉलर देन इक्वल टू। तो इन सब कॉम्प्लेक्स नंबर में वो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट होगा? तो इसको ज्योमेट्रिकली ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम ओरिजिन से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्वाइन करते हैं तो उसका जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है वही उसका आर्ग्यूमेंट होता है। तो अगर हम ओरिजिन से एक टैंजेंट इस सर्कल पे यहाँ पर बनाएं जो इसको टच करते हुए जा रहा हो, तो दिस इज एक्चुअली ए पार्ट विच इज लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। अब इसकी वैल्यू भी पता करनी पड़ेगी हमें। और अगर हम एक टैंजेंट बनाते हैं जो कि ये इधर से जा रहा हो टच करते हुए ओरिजिन से, तो ये जो एंगल मिलेगा हमें, दिस इज एक्चुअली बी विच इज मैक्सिमम पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। तो ये जो दो तरफ हमने टैंजेंट बनाया है, एक तरफ वाला टैंजेंट हमें लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट देगा और एक तरफ वाला मैक्सिमम पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट देगा। बाकी जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर सर्कल के अंदर हैं या उसके ऊपर हैं, वो सारे के आर्ग्यूमेंट इन दोनों के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ रही है बात यहाँ तक? Yes, sir. ओके, बाकी लोगों को क्लियर है? किसी को कोई इश्यू तो नहीं इसको समझने में? No, sir. Okay, Ashish. So if we want to know this point, so what we will do, we will draw a tangent, we will draw a radius perpendicular to this tangent like this. तो इसका जो रेडियस है वो 15 यूनिट्स है और 25 क्या है? इस सेंटर की ओरिजिन से दूरी जो है वो 25 है। तो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल अगर तुम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? मतलब इसको ऐसे देख सकते हो, क्योंकि तुम्हें जो है एक तो ये देखो कि ये जो डिस्टेंस है टैंजेंट का एट दिस पॉइंट P, तो ये डिस्टेंस OP जो होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम रूट ओवर 24 5 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज बेस, उसका अंडर रूट लेते हैं। तो ये हो जाएगा 625 माइनस 225 400 का अंडर रूट विच विल बी एक्चुअली 20, राइट। तो ओपी की जो वैल्यू हो रही है वो 20 हो रही है। और जो आर्ग्यूमेंट है ओपी का, अगर हम आर्ग्यूमेंट निकालें, इट इज अ गुड क्वेश्चन, स्लाइटली डिफिकल्ट बट इट इज अ गुड क्वेश्चन। सो अगर हम इसका आर्ग्यूमेंट निकालें, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z, तो ये जो एंगल है जो लीस्ट पॉसिबल आर्ग्यूमेंट की बात की जा रही है, ये वाला एंगल, तो इस ये वाला एंगल जो है यहाँ पर ये 90 डिग्री माइनस दैट है। तो यहाँ पर हम अगर राइट एंगल ट्रायंगल में लगाते हैं टैन का कॉन्सेप्ट, तो टैन ऑफ, इसको ले लेते हैं अल्फा, जो छोटा सा एंगल है, तो टैन ऑफ अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब ये हो जाएगा 15/20 अभी हमने निकाला है विच इज 3/4। तो टैन अल्फा ये हो जाएगा, मतलब कॉट अल्फा क्या होगा? कॉट अल्फा 4/3 हो जाएगा। और आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, जो P पॉइंट है, उसका आर्ग्यूमेंट जो है वो है 90 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, फिगर से दिख रहा है 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा। तो Sir.
दैट वुड बी कि अगर कॉट अल्फा 4/3 है तो ये हो जाएगा, मतलब इसको अभी 90 डिग्री माइनस अल्फा रहने दो, इसको एंगल लिखने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हो लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। तो अब क्या होगा हमारे पास कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो होता है पोलर फॉर्म में r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, राइट। तो यहाँ पर जो r है वो है 20, ठीक है, ये हमने देख लिया, और यहाँ पर भी r की वैल्यू 20 है। cos थीटा इज द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या है 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो cos ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फा अगर हम निकालते हैं यहाँ पर cos ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो दैट विल बी एक्चुअली साइन अल्फा। और इस ट्राइंगल में जो हमारा साइन अल्फा होगा, ये वाला अल्फा है, तो जो साइन अल्फा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी 15/25 व्हिच इज एक्चुअली 3/5। तो दिस इज इनटू 3/5, और जो साइन थीटा होगा वो 4/5 होगा। ये फिजिक्स में तुमने ये वाला यूज काफी किया होगा, 3, 4, 5 वाला पाइथागोरस थ्योरम में, जो Yes, sir. 37 डिग्री और 53 डिग्री एंगल होता है। लेकिन अभी हम उस एंगल पे नहीं जा रहे हैं, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये फाइनली हो जाएगा 12 प्लस 16 iota. So this is what we are getting as the complex number at P. This point will be 12 plus 16 iota, और जो लीस्ट आर्ग्यूमेंट है वो जो है 16/12 मतलब 4/3 हो जाएगा। और दूसरा जो मैक्सिमम पॉसिबल आर्ग्यूमेंट की बात की जा रही है, तुम क्या कर सकते हो कि जरूरत नहीं है उसको निकालने की, तुम बाई सिमेट्री कह सकते हो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जो पॉइंट Q है दैट कैन बी रिटन एज -12 प्लस 16 आयोटा बाई सिमेट्री। चाहो तो कैलकुलेट भी करोगे तो मिल जाएगा, लेकिन जब हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले का P पॉइंट निकाल लिया है, तो बाई सिमेट्री जो सेकेंड क्वाड्रेंट वाला Q पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट जस्ट अपोजिट साइन का हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. आ रही है। यस सर। इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम लोग मॉड्यूलस वाले की भी बात करते हैं, C और D की भी बात करते हैं। अगर कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा होगा तो पूछ लेना पक्का, ठीक है, क्योंकि दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड स्पेशली कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। बाकी ये सब क्वेश्चन तो तुम्हारे 11th क्लास में नहीं आएगा, लेकिन ये है कि बेसिक आर्गुमेंट के बारे में पता होना चाहिए, जो हमने पहले क्वेश्चन सभी किए थे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। लीस्ट मॉड्यूलस की अगर बात करेंगे ना, तो मतलब सबसे कम दूरी पे,
और मैक्सिमम मॉड्यूलस की बात करेंगे मतलब सबसे ज़्यादा दूरी पे। तो मैं यहाँ पर जो फिगर है इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर बता देता हूँ। उसमें इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ उसमें लिख दिया गया है, काफ़ी गिच पिच हो जाएगा। तो दिस पॉइंट ए हेयर, ये सबसे कम दूरी पे है, एंड दिस पॉइंट हेयर बी, ये ओरिजिन से सबसे ज्यादा दूरी पे है। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है ये बहुत आसान है बताना, और बी का क्या है तुम बता सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। आई वॉन्ट एवरीवन टू जस्ट टेल मी ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट। जो सेंटर है उसकी दूरी 25 है और रेडियस 15 है। तो जब ए निकालोगे तो 25 में से 15 हटा दो, 0 10 0 10 इज करेक्ट। और जब बी निकालोगे 25 सेंटर तक, और अब 15 हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यस 0 40 0 40, ठीक है। तो लीस्ट मॉड्यूलस वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया वो z इज इक्वल टू 10 आयोटा हो गया। रियल पार्ट तो 0 ही है क्योंकि y एक्सिस पे है, और मैक्सिमम मॉड्यूलस वाला जो हो गया वो 40 आयोटा हो गया। आर यू गेटिंग इट? यस सर। ओके, किसी को भी कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा आर्गुमेंट और मॉड्यूलस निकालने में इस तरह के क्वेश्चन में? आई होप नॉट। और रिवीजन करते रहा करो, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो भूलने का भी डर रहता है, इसलिए इस तरह की जो चीजें हम लोग क्लास में करते हैं इसको तुरंत क्लास के बाद रिवाइज कर लिया करो। चलो आई एम इरेजिंग दिस नाउ। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट की जो मेन प्रॉपर्टीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारी ऐसे 10-12 हैं। तो अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का आर्गुमेंट ले रहे हैं तो अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, इफ यू मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देन वी टेक द आर्गुमेंट, तो इट इज इक्वल टू, जैसे लॉग में होता है ना वैसे ही, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 हो जाएगा। और बाकी एडजस्ट करने के लिए हम 2n पाई एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि 2n पाई क्या होगा। मेनली जो अभी तुम्हें समझना है वो ये है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका आर्ग्यूमेंट अगर निकालते हो, या फिर अलग अलग आर्ग्यूमेंट निकाल के फिर उसको ऐड करते हो, तो दोनों सेम होता है। उसी तरीके से अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया जा रहा है और उसके बाद उसका आर्ग्यूमेंट निकाला जा रहा है, तो दैट इज सेम एज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। सो डिवीजन में निगेटिव बन जाता है और मल्टीप्लीकेशन में पॉजिटिव बन जाता है। बाकी ये 2n पाई हम एडजस्ट करने के लिए लगाते हैं, वो क्वेश्चन आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि एडजस्ट कैसे करते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस ये होता है ना कि आर्ग्यूमेंट शुड लाई बिटवीन -पाई टू पाई, इसके अंदर लाई करना चाहिए, इसके बाहर लाई करेगा तो हम अप्रोप्रिएट 2n पाई से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो आर्ग्यूमेंट तो बहुत सारा हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। मान लो कि कोई पॉइंट है यहाँ पे और इसका आर्ग्यूमेंट आया π/4, राइट, π/4 है, लेकिन अगर हम इसमें 2 पाई ऐड कर दें, मतलब एक पूरा रोटेशन ऐड कर दें, तो वो भी इसका आर्ग्यूमेंट होगा, π/4 प्लस 2 पाई भी इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। अगर हम दो रोटेशन कर लें तो π/4 प्लस 4 पाई भी इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। अगर हम क्लॉकवाइज एक रोटेशन कर लें तो π/4 माइनस 2 पाई भी इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तो 2n पाई जो है, अगर n कैन बी पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर, हम लोग फिर वहीं पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। चाहे एंटी क्लॉकवाइज 2 पाई मूव करें या क्लॉकवाइज 2 पाई मूव करें, पूरा एक रोटेशन हो जाता है, फिर से वहीं पे आ जाते हैं। सो दीज आर ऑल द आर्ग्यूमेंट्स, सो देयर कैन बी इनफाइनाइट आर्ग्यूमेंट्स, बट वी टेक प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट which is amplitude. So this argument when we refer, we say that it is a principal argument, जो कि -पाई और पाई के बीच वाला हम लोग लेते हैं। ये बात समझ में आ रही है? यस, नो रिस्पॉन्स, नहीं समझ में आया? तो दोबारा से बता दीजिए। दोबारा से बता दो, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं कह रहा था तुम्हें कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है, ये एंगल बना रहा है π/4 विद द पॉजिटिव एक्स एक्स, तो ये इसका आर्ग्यूमेंट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से
मैं रोटेट कर करके वापस यहाँ पहुंच जाऊं, तो कितना रोटेशन हमने किया यहाँ पे? 2 पाई, एक पूरा सर्कल बना दिया ना, तो 2 पाई हुआ 360 डिग्री। तो यस सर। पाई बाई 4 भी इसका आर्गुमेंट हो सकता है, या पाई बाई 4 प्लस 2 पाई भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग पूरा रोटेशन करके फिर से तो वहीं पे पहुंच गए। अगर हम 2 रोटेशन करें, फिर से एक और रोटेशन कर लें, तो पाई बाई 4 प्लस 4 पाई भी उसका आर्गुमेंट हो सकता है। अगर हमने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज रोटेशन कर दिया, मान लो ऐसे कर दिया, ऐसे, तो पाई बाई 4 में हमने -2 पाई ऐड कर दिया, तो ये भी हमारा एक आर्गुमेंट हो सकता है। लेकिन ऐसे इनफाइनाइट आर्गुमेंट हो सकते हैं, क्योंकि हर 2 पाई पे हम फिर वहीं पहुंच जा रहे हैं। तो हम जब लेते हैं तो हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करते हैं, विच इज बिटवीन -पाई एंड पाई, तो वो ये पाई बाई 4 है। तो दिस इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। वैसे आर्गुमेंट इसके इनफाइनाइट हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, ये दो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, और भी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं, इस पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक दो। इसके फॉर्मूले में +2 पाई लिखना है। +2 n पाई इसलिए ना, वो मतलब एडजस्ट करने में अभी बता देता हूँ, रुको। ये नोट कर लिया सबने? जस्ट मैं सर। तो बेसिकली सबने नोट कर लिया था ना? सर साइड पीछे कर लीजिए, लास्ट वाला बचा। स्लाइड तो इरेज हो गई, अब पीछे कैसे होगी? कंट्रोल Z करते हैं, हाँ आ गया, चलो सही है। डन सर। ओके, सो अगर हम मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, -1 प्लस √3 आउट, ओके। एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, -1 और प्लस आयोटा, ठीक है, इस तरीके से कुछ ले रहे हैं। तो अगर हम इसका अलग से आर्गुमेंट निकालें और इसका अलग से आर्गुमेंट निकालें, तो ये तुम आर्गुमेंट देख सकते हो कि क्या आएगा। जैसे tan थीटा y/x का मॉड करेंगे तो √3 हो जाएगा, विच इज एक्चुअली 60 डिग्री, ठीक है। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है, -1 और √3 है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो हम क्या लिखेंगे? पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई/3, तो ये हो जाएगा 2 पाई/3, ठीक है। वैसे ही Z2 का आर्गुमेंट निकालेंगे तो दिस इज ऑल्सो इन सेकंड क्वाड्रेंट, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, ये भी पाई माइनस थीटा होगा। थीटा क्या होगा? मॉड ऑफ y/x करेंगे तो 1/-1 का मॉड 1 हो जाएगा, तो पाई/4 हो जाएगा। दिस विल बी 3 पाई/4। ये निकालने में दिक्कत तो नहीं हो रही है? समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। ठीक है। अब अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 इंटू Z2 को, और अगर उसको बाय फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा है ऐसे लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, तो लिख सकते हैं ऐसा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज 2 पाई/3 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज 3 पाई/4। तो जब इसको ऐड करोगे, 12 विल बी द एलसीएम, ये हो जाएगा 8 पाई प्लस 9 पाई, 17 पाई/12। अब दिक्कत ये है कि ये जो आया है वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू सही है, 17 पाई/12 इज अ करेक्ट वैल्यू। तो 17 पाई/12 जो है, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये वैल्यू प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन पाई। और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है? दैट बिलोंग्स टू -पाई से लेके पाई के बीच में पाया जाता है। तो जब तुम 17 पाई/12 को देखोगे तो 17 पाई/12 इज ग्रेटर देन पाई, यहाँ पर कहीं पर है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम इसको गलत नहीं कह सकते, लेकिन बट इट इज नॉट अ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो अब इसको हमें -पाई से पाई करना है, तो हमें एक सुटेबल यहाँ पर 2n पाई ऐड करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन के लिए n हम अपने सहूलियत के हिसाब से ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर 17 पाई/12 है, तो हम क्या करें कि 17 पाई/12 जो हो वो -पाई और पाई के बीच में आ जाए। तो हम यहाँ पर अगर -2 पाई कर देते हैं, यानी कि हमने n की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या ले ली? -1। ये थोड़ा सा सोच के देखना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 17 पाई/12 -2 पाई का एलसीएम लेंगे तो 17 पाई माइनस 24 पाई/12 हो जाएगा, विच इज एक्चुअली 17 पाई माइनस 24 पाई इज -7 पाई/12, राइट। तो ये -7 पाई/12, मतलब
जब हम आंसर लिखेंगे तो यहाँ पर 2n पाई में जब -2 पाई ऐड कर देंगे तो ये जो वैल्यू आएगी, मतलब हमने 2 पाई एक रोटेशन क्लॉकवाइज कर दिया, तो ये वैल्यू जो आएगी वो -7 पाई/12 आएगी। एंड दिस वैल्यू एक्चुअली लाइज इन -पाई। इसको जब तुम प्लॉट करोगे तो तुम ऐसे देखोगे कि ये है -7 पाई/12 और ऊपर में जो रेड से हमने लिया था वो था 17 पाई/12। तो सिंस हम दोनों को ले सकते हैं क्योंकि दोनों हमें वहीं पे पहुंचाएगा जहां पे हमें जाना है, लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम वो वैल्यू लेते हैं जो -पाई और पाई के बीच में हो। तो हम क्या करेंगे कि जब वैल्यू उस रेंज में नहीं लाई कर रही है तो हम अप्रोप्रिएट 2n पाई से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे कि वो उस रेंज में आ जाए। ये बात समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके आरुषि, बाकी लोगों को समझ में आया कि 2n पाई हम क्यों यूज कर रहे हैं? Yes, sir. यस ओके गुड गुड। तो हमें बस ये दिमाग में रखना है कि हम जनरली प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिखते हैं, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो आए वो हमारा -पाई और पाई के बीच में आए। अगर नहीं आ रहा है तो हम 2n पाई उसमें ऐड कर देते हैं और देखते हैं कि n की क्या वैल्यू लें जिससे वो उस रेंज में आ जाए। n को जैसे यहाँ पे मैंने -1 लिया, ठीक है, कहीं पे हो सकता है -2 लेना पड़े, कहीं पे हो सकता है 1 लेना पड़े, कहीं पे 2 लेना पड़े। ठीक, जैसे यहाँ पे क्लॉकवाइज मूव किए, कहीं पे हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ सकता है। तो एक रोटेशन पूरा अगर हम करते हैं तो क्या उस एंगल को प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में लाई करा पा रहे हैं या नहीं करा पा रहे हैं, ये हमें देख के n की अप्रोप्रिएट वैल्यू लेनी है। जैसे यहाँ पे n की अगर तुम 1 ले लेते तो बात नहीं बनता, ठीक है। n की अगर मान लो तुमने 1 ले लेते तो क्या हो जाता कि 17 पाई/12 तो था ही, और +2 पाई और कर देते तब तो और भी बड़ा हो जाता, पाई से ऑलरेडी बड़ा था, तो तुम्हें उसमें से -2 पाई कम करना पड़ा। ये बात सही समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. नोट कर लेना तो बता देना। सर डन। ओके गुड। तो जो आर्ग्यूमेंट के बारे में आज हमने पढ़ा है वो क्लियर है, क्योंकि देखो सबसे आसान तो कॉन्जुगेट लगता है, उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मॉडुलस, और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पिछले क्लास में मैंने तुम्हें मॉडुलस और कंजुगेट तो एक क्लास में बता दिया था, लेकिन आर्ग्यूमेंट के लिए मैंने एकदम अलग क्लास रखी कि इसमें कोई और टॉपिक नहीं मिला रहा। तो ये समझ में आ रहा है आर्ग्यूमेंट? यस सर, आ रहा है। ओके।
तो मान लो तुम्हें मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ और सपोज z1 is a complex number which is -1 minus iota, ठीक है, and z2 is a complex number वन प्लस √3 iota, और मैं तुमसे कहता हूँ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 by z2 निकालना है। तो इसके लिए फिर से जो अभी हमने डिस्कस किया है उसको अप्लाई कैसे करोगे जरा बता सकते हो? इसका तो फॉर्मूला ये हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 क्योंकि डिवीजन है, प्लस 2n पाई, जो हम बाद में देखेंगे कि 2n पाई में n क्या लेना चाहिए, वो बात की चीज है। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा और इसका आर्ग्यूमेंट, अलग अलग दोनों का आर्ग्यूमेंट मुझे बताना। Argument of z1 will be, please tell every one of you. -3 पाई बाई 4, आयुषी करेक्ट। अब मैं ये नहीं बता रहा कि कैसे निकलेगा, सब लोग निकाल सकते हो, इतना बता चुका हूं, तो तुम लोग निकाल लोगे, या तो अभी निकल पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो क्लास के बाद तुरंत निकाल देना। जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 है वो होगा पाई बाई 3, 60 डिग्री। तो z1 जो है वो एक्चुअली थर्ड क्वाड्रेंट में है और z2 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z2 निकालता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज -3 पाई बाई 4, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज पाई बाई 3, अब प्लस 2n पाई क्या लेना चाहिए वो भी हम सोचेंगे। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12 -9 पाई -4 -13 पाई प्लस 2n पाई। अब ये जो है एंगल -13 पाई बाई 12, क्या ये माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करता है या नहीं करता है? माइनस पाई को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, पाई को इंक्लूड कर देते हैं, एक किसी एक को कर लेना है तो हम पाई को करते हैं। इज दिस लाइंग इन दिस इंटरवल -13 पाई बाई 12 और नॉट? -13 पाई बाई 12 जो है वो माइनस पाई से छोटा है, -13 पाई बाई 12 इज, तो उस इंटरवल पे नहीं लाई कर रहा ना, कहाँ कर रहा है? -13 पाई बाई 12 इज माइनस पाई से छोटा, तो इस इंटरवल पे तो नहीं लाई कर रहा। अब n हम क्या लें कि ये पूरा एक चक्कर लगा के माइनस पाई और पाई के बीच में आ जाए? तो -13 पाई बाई 12 में अगर मैं 2 पाई ऐड कर देता हूँ, n को क्या ले रहा हूँ? 1 ले रहा हूँ, इसके बाद कैलकुलेट करता हूँ तो ये आ जाएगा 11 पाई बाई 12, विच एक्चुअली लाइज इन दिस इंटरवल। इज इट ओके? यस सर। ओके सर। तो हम 17 पाई बाई 12 इसका आंसर लिखेंगे। द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज 17 पाई बाई 12। ओके सर। 11 pi by 12 is the principal argument. So I hope जो आर्ग्यूमेंट के ऊपर हमने अभी डिस्कशन किया हो वो क्लियर हो गया है, और जो असाइनमेंट मिलेगा वो तुम लोग कर लोगे। इज इट ओके? यस सर। यस सर। और कोई डाउट रहता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।